मुझे पता था कि आई विल गेट सेलेक्टेड बिकॉज आई अपीयर्ड गुड एंड मेरे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में वो सारे के आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से दिए थे। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, दैट Okay. मॉक टेस्ट इज द की फॉर एनी Okay. एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट आई हैव Hmm. अपीयर्ड with that I can't even count from PO to Hmm. IT officer how many I have given. I keep on giving the examination. Hmm. So Hmm. जितने भी ये गैप है ये ओवर अटेम्प्ट की वजह से हुआ है। इफ आई से चला गया बिकॉज ऑफ ओवर अटेम्प्ट आई डिड इन, so I got bit low marks. Saying God I will clear this, please help me. No, you are seeing your Hmm. result itself in the home. Just Hmm. go and appear for Hmm. that test and you will be the next scale 1 officer in any bank. Hello everyone. Today we have with us Samir Beetham, who has successfully cleared IBPS SOIT and has joined as an IT officer in the Canara Bank. We will talk to him about his journey and his strategy for clearing the exam. Welcome, Samir. First of all, congratulations on cracking IBPS SO. Thanks a lot, ma'am. Yeah. So before we begin, can you tell us a little about yourself and your background? So actually I belong from Kolkata and I completed my BTech in 2023, and from my college Okay. itself I got placed in a company LTI Mindtree, and I Hmm. started working there, and I worked there for around 1.2 years. And from there I was actually focused on banking examinations since 2023 itself, so before passing out my college. So I started preparing for PO examinations early, and even I have cleared for Central Bank of India PO in this year along Hmm. with IT officer exam in Canada Bank, but I choose IT officer in Canada Bank. So like Okay. this only. After getting selection in Canada Bank, I resigned from my previous company and joined Canada Bank in May 26. My joining date. So how does this IBPS SO thing came as a goal? Like you were planning on applying it, or how did it come? Like did you decide this path later on in your career journey, और आपने पहले से ही सोचा था कि मुझे इसके लिए ट्राई करना है? जब मैं कॉलेज में था तभी से बैंकिंग प्रिपरेशन में मैं लगा हुआ था, तो मेरे को बैंकिंग हम्म एग्जामिनेशंस की पूरी नॉलेज थी पहले से ही। कौन सा एग्जाम हम्म किस टाइम पे कब कंडक्ट होता है, उसकी कट ऑफ्स क्या होती है, तो मैं हमेशा हर एग्जाम्स को हम्म टारगेट करता था। तो यही था। लेकिन मैंने आईटी ऑफिसर फर्स्ट टाइम ये 2024 का ही अप्लाई किया था, 2023 में मैंने नहीं अप्लाई किया था। सिंस दैट वाज Okay. माय स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब आई वाज बिजी देयर, so like Okay. that only. And my parents also wanted me to go to government sector, that's why I was keeping my eye on all the government sector, so that's why I came in this field. So आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया इसका Yes मतलब? ma'am, I have cleared. That's great. That's great. So अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया. So you saw your results and like the immediate thought or first feeling कैसी थी? बहुत अच्छी थी। मेरे पापा तो यहाँ तक उस दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था मंदिर में जाकर के वहां से मेरे लिए प्रसाद माला वगैरह लेकर के आए थे। फिर मुझे अच्छे से वो हाँ. किया गया। दे वर टू हैप्पी। Hmm. एंड सिंस मॉर्निंग ओनली फ्रॉम 6 in the morning my father was more nervous than me that what will be his result. He keep on asking हाँ. that result got published on website or not, तो मैं भी चेक कर ही रहा था। तो जैसे ही आया तो हाँ. सारे फैमिली वाले खुश थे। मुझे पता था कि आई विल गेट सेलेक्टेड बिकॉज आई अपीयर्ड गुड एंड मेरे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में वो सारे के आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से दिए थे। Great. So if you were to describe your entire preparation journey, मतलब starting से लेके selection तक, so अगर एक word में describe करना हो तो what it would be? I have given maximum number of mock tests. That Okay. mock test is the key for any Okay. examinations. Mock test I have appeared Hmm. with that I can't even count from PO to Hmm. IT officer how many I have given. I keep on giving the examination, and mostly Hmm. that Oli board is Right. giving live mock test in the every Saturday and Sundays. So Hmm. that is the most important thing which I never miss. This I am keeping, and there I can identify where I am standing all over India or where my competition is. Okay, so you appear for the mock test and then you analyze the result, right? कि कहाँ पे wrong गया, कहाँ पे सही हुआ. हाँ, So you मॉक do टेस्ट that. मैं पहले देता हूँ और मॉक टेस्ट Hmm. के जितने भी क्वेश्चंस मैं लगा सकता हूँ मैं खुद से लगाता हूँ। उसके बाद Hmm. सबमिट करूंगा अपने सारे परसेंटाइल नंबरिंग वगैरह कौन कौन सा रॉन्ग हुआ है, उसके बाद उसको मैं सॉल्यूशंस उसको देखूंगा जहाँ मेरे रॉन्ग हुए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को मैं Hmm. ट्राई करूंगा कि मतलब रॉन्ग हुए हैं तो क्या उसका सही कॉन्सेप्ट है, Hmm. मैं उसे अच्छे से लिखूंगा और उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा। फिर सेकेंड मॉक में उसी कॉन्सेप्ट पे जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं मैं इजिली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। So आपने इनिशियल मंथ्स में जब तैयारी स्टार्ट कर रही थी तो कैसे मतलब सिलेबस करने की आपको कौन सा स्ट्रैटेजी था? कैसे कवर किया? इतना बड़ा सिलेबस है.
सो आप ऑलरेडी काम भी कर रहे थे, तो आपने कैसे हाँ। टाइम लिया, कैसे वो कवर किया, आपकी स्ट्रैटेजी प्लान उसके बारे में डिटेल में बताइए। So, ma'am, first I start with the prelims. So, prelims for the prelims test और what शुरू से जैसे भी मैं करता था टेस्ट के लिए और जो भी क्लासेस चलती थी हमारे यूट्यूब पे भी मैक्सिमम मैं सर लोग को फॉलो कर रहा था। तो मैं शुरू शुरू में जब मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई करता था तो मेरे स्पीड कम थे क्योंकि मैं लॉन्ग हम्म। प्रोसेस से जितने भी क्वेश्चंस करे जाते हैं उस तरीके से करता जाता था। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए करे शुरू में टीचर्स को फॉलो करके जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है किसी का भी ये मैथ और रीजनिंग के लिए इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूंगा बैंकिंग एग्जामिनेशन आज के टर्म में ग्रामर जो है वो 20% से 30% ही रह गया है और 70% मोस्टली रीडिंग रह गया है। तो हम्म। और मैं ऑलरेडी वर्किंग था तो इंग्लिश एनवायरनमेंट भी था वहाँ और प्लस मैंने हम्म। कुछ जैसे स्टडी के लिए फिनशॉट्स वगैरह को सब्सक्राइब कर रखा था तो वो सब की रीडिंग करता था मैं। रीडिंग इज टू ओके। मच इंपॉर्टेंट अगर कोई रीडिंग भी बहुत अच्छे से करे तो आराम से पकड़ सकता है। इरर हम्म। कहाँ है और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स आती है वो कहाँ है जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं वो सब बहुत इजीली पकड़ सकता है कोई तुरंत माइंड में पकड़ता चला जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर हमें मिल सकता है। सो लाइक दैट और रीजनिंग और मैथ्स के मैंने जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते थे वो शॉर्टेस्ट पाथ सीख करके आई डायरेक्टली जम्प टू द मॉक टेस्ट हम्म। एंड ऑल्सो द लाइव मॉक विच आई एम गिविंग ऑन द सैटरडे एंड हाँ। संडे। सो इस तरीके से मैंने हाँ। अपनी प्रीलिम्स को कंटिन्यू रखा सारे चैप्टर वाइज ऐसे ही फॉलो करता गया पढ़ता गया और मैंने अपने प्रीलिम्स में अपने मार्क्स को उठते हुए देखा है इस कॉन्सेप्ट को करते हुए वो होते गए। तो और जितने भी मैं मॉक देता था मैं बताऊं तो ओली बोर्ड के जितने भी मैंने मॉक दिए हैं परसेंटाइल मेरी थी हमेशा 80 परसेंटाइल सबसे लोएस्ट रही शुरू शुरू में तो डेफिनेटली 55 यहाँ तक मेरी 40 भी गई थी लेकिन मैं हम्म। कंटिन्यू रहा इसी बात को कंटिन्यू करता रहा तो मेरी परसेंटाइल टच कर गई थी। सबसे हाईएस्ट मेरे को 98 परसेंटाइल आए थे वो लाइव मॉक की बात कर रहा हूँ मैं। सो ग्रेट। यही तो प्रीलिम्स ऐसा होता गया और फिर जब मुझे यकीन नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा जिस दिन मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उस दिन मैं ऑफिस में ही बैठा था। शाम का टाइम था हाँ। लगभग 3 से 4 बजे के आसपास रिजल्ट आया। मैंने लॉग इन किया जस्ट हम्म। चेक करने के लिए कि मेरे हुआ क्लियर या नहीं हुआ तो आई सॉ कांग्रेचुलेशन ऑन माई स्क्रीन। ऑन दैट डे इटसेल्फ आई जंप्ड ऑन द मॉक। उस शाम हाँ। को भी मैंने एक मॉक लगाया था मेंस का जो कि अच्छे तो नहीं गए थे क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी बढ़िया नहीं थी और मेरे पास सिर्फ ओके। 13-14 दिन या 12-13 दिन शायद बचे थे मेंस के लिए क्योंकि 14 दिसंबर को मेंस था आईटी का। हाँ। तो मैंने जितने भी वो हमारे ऑफिस से वर्क आते थे उसको थोड़ा ऑफिस में भी साइड में करते हुए या स्पीड से उसको खत्म करते हुए मैं ऑफिस में भी ट्राई करता था कि जितने से जितने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकूं। तो इसके लिए हम्म। ऑफिस में मैं जितने भी हमारे मॉक टेस्ट है पहले से ही अवेलेबल जो हम्म। मैंने या तो हम्म। सबमिट कर रखा है उसके हम्म। सॉल्यूशंस वगैरह पे मैं जंप करूंगा जैसे कि मॉक टेस्ट नंबर 1-2 मैंने कंप्लीट कर लिए हम्म। तो मैंने हम्म। 1 को रीओपन किया उसमें जो सही है वो हम्म। तो मुझे पता ही है जो गलत है वहां पर मैं रीड कर रहा हूँ फिर मॉक टेस्ट नंबर 2 में जा रहा हूँ जो ओके। गलत है वो मैं रीड कर रहा हूँ। और जो सेक्शनल हम्म। मॉक्स भी जो होते हैं हमारे आईटी के हम्म। लिए जैसे कि डाटाबेस हम्म। हो गया या फिर ओरेकल से क्वेश्चन आते थे इस बार पाइथन और एसक्यूएल से हम्म। बहुत क्वेश्चन आई थी और मैं डाटा हम्म। इंजीनियरी था अपनी प्रीवियस कंपनी में भी। सो इट ओके। ऑल्सो हेल्प मी अ बिट। सो हम्म। लाइक दैट तो मैं अपने फ्री टाइम में भी या फिर अपना टाइम निकाल करके वो सेक्शनल मॉक को पढ़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को देख रहा हूँ हम्म। और जो भी पुराने मैंने मॉक्स कंप्लीट कर रखे हैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ। तो ऐसे हम्म। कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ता गया क्लियर करता गया और थोड़े बहुत जो हमारे सर लोग हमें पढ़ाते थे उससे भी मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता गया। So both combining ओके। from the teacher tutorials and from the हम्म। mocks which I am giving, हम्म। all combining have cleared my concepts, which makes my mains part strong. तो इसीलिए मैं अभी मुझे ये समझ में आया कि आपने मॉक्स और कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब एक अच्छा फ्लो बना लिया था कि मॉक्स Yes. देना है, क्योंकि वहां से आप सीख रहे थे कि हाँ यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे सीखना है, और जो भी समझ में नहीं आ रहा था तो आप हाँ यूट्यूब या फिर ऐसे वीडियोस देख रहे थे। तो अभी आपने ऐसे यूट्यूब में ऑल अबाउट से कुछ वीडियोस देखे थे कभी भी? जी या बॉलीवुड को ही मैं मैक्सिमम जितने भी ये मॉक्स अटेम्प्ट करता था मैं तो उसमें हम्म। मुझे पता था कि कौन से सर इस तरह के क्वेश्चंस हम्म। मुझे बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं तो हम्म। मैक्सिमम मैं बॉलीवुड हम्म। की ही सर लोग को फॉलो करता था। हाँ। हाँ। ऐसा कोई आपको याद है, कोई फैकल्टी जिस मतलब हु हेल्प्ड यू, हु लेफ्ट इम्प्रेशन ऑन यू, मतलब हाँ इससे अच्छा सीख के, या फिर बहुत लोग बोलते हैं संजय सर से लिया था डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपने ऐसे कुछ हुआ है? ओके एज ऑफ नाउ टीचर का तो मुझे शक्ल याद होगा लेकिन नाम तो उतना नहीं याद है क्योंकि मैंने वो हाँ, 13-14 डेज में जितना देख सकता था मैंने देखा था। कर सकते हैं हाँ। यस जी मैम। जी, समझ गए। आपने 13-14 डेज, बहुत ही कम पीरियड है, मैं वही पूछना सिंस चाह रही थी। 13-14 डेज हाँ। इसलिए क्योंकि आई वाज वर्किंग इन दैट फील्ड ओनली एसक्यूएल हम्म। पाइथन
लकीली मैं बोलूंगा कि हम्म। इसी से क्वेश्चंस बहुत आए थे हमारे मेंस में, और हाँ। मेरी ट्रेनिंग वगैरह और जो मेरी वर्किंग थी वो एसक्यूएल पाइथन में ही थी प्रीवियस कंपनी में। ओके। सो हम्म। एंड ओके। ऑल्सो मॉक टेस्ट और मेरी जितने भी कॉन्सेप्ट कही थी ये सबको भी मैं फॉलो करता हम्म। था। मैं करंट अप टू हम्म। डेट चेक करता था हर जगह की कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हम्म। में आए हैं, कैसे कैसे हम्म। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस तरीके को हम्म। चीजों को मैं फॉलो किया ओके ओके। मैथ्स में। सो आपकी जर्नी में मतलब आपने तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट से बता दिया, बट ऐसा कभी हुआ था कि अरे मतलब ये गलती अगर नहीं करते तो और ज्यादा अच्छा होता, ऐसा कभी लगा है कुछ भी? मतलब इन द सेंस जैसे कि कुछ भी मैं मॉक में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर देता था, ये सोच करके हाँ। कि चलो कुछ तुक्के लग जाएंगे मेरे। हाँ। हाँ। यही मैंने किया है अपने मेंस में भी, हाँ। फाइनल मेंस में। ओ। मैंने लगभग ओके। 47 अटेम्प्ट करके आया था मैं, जिसमें से हम्म। मेरे को मार्क्स आया है मेंस में 23 आउट ऑफ 60। ओके। हम्म। सो हम्म। जितने भी ये गैप है ये ओवर अटेम्प्ट की वजह से हुआ है। और ये ओके। ओवर अटेम्प्ट मुझे खुद ही एनालाइज करना चाहिए कि जब मैं मॉक दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि हर मॉक हम्म। में या फिर हर क्वेश्चन में तो नए ही क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो हम्म। ओवर थिंकिंग करके कि हाँ मैंने बहुत कर लिया है, आराम से ये जो मैं टिक हम्म। करूंगा ये मेरा सही ही होगा, तो ये नहीं थिंकिंग हम्म। करनी। अगर मुझे थोड़ा भी हम्म। कॉन्सेप्ट पता चल रहा है या फिर मैं टच भी कर पा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को, तो ही मैं हम्म। अटेम्प्ट करूंगा उस क्वेश्चन को। अननेसेसरली नहीं ओके। हो सकते हैं ये। ओके तो आई हैव मतलब। kept my first हम्म। preference as a Punjab National Bank, since I also belong from हम्म। the north side, but currently I posted हाँ। in Canara Bank in Bengaluru. This is my second हम्म। preference. I lost a punch, ओके। or if I say चला गया because of over attempt I did in, so I got a bit low marks or तो आपका मतलब अभी ऐसा है कि एक्यूरेसी, टाइम के हिसाब से एक्यूरेसी आई थिंक मेंटेन करना चाहिए एग्जाम में, तभी हाँ हाँ मतलब ज्यादा हाँ, हाँ एक्यूरेसी अटेम्प्ट मैटर्स करना। अ लॉट। हाँ। तो वही हम अभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो अभी उनको भी समझ आएगा कि अटेम्प्ट सब करना है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, टाइम क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है इसके लिए। हाँ और हाँ। तो अभी आप ये बताइए कि आपने जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कम टाइम थे, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, बहुत कम टाइम थे, तो ऐसा क्या अलग किया था आपने मेंस की तैयारी में? मेंस की तैयारी के लिए तो जैसे ही मुझे मेरा रिजल्ट पता चला प्रीलिम्स के मुझे क्लियर है मेरा प्रीलिम्स, तो हम्म। मैंने कुछ नहीं, जस्ट आई कॉल्ड टू माय पेरेंट्स दैट आई हैव cleared my prelims. They told anyhow you हाँ। just focus a lot on your for your mains. हम्म। सो मैंने नहीं हाँ। इधर देखा ना उधर देखा, मैं उसी शाम को, जिस दिन रिजल्ट आया उसी शाम हम्म। को मैंने एक मॉक्स दिया एनालाइज करने के लिए। मैं समझ भी पा रहा हूँ क्वेश्चंस को कि नहीं, हम्म। कितने अटेम्प्ट कर पा हम्म। रहा हूँ। मेरा कटअप भी क्लियर हम्म। नहीं हुआ था उस शाम को मेंस को, हम्म। हम्म। बट वही है मतलब कि उसी दिन से काफी लेट नाइट तक मैंने अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहा, और मॉक टेस्ट से मैंने बहुत सीखा है। मतलब जितने भी मॉक टेस्ट मैं कलेक्ट कर सकता हूँ और जितने भी उसी को रीड हम्म। कर सकता हूँ मैं, और जितने टीचर हम्म। से मैं सीख सकता हूँ पढ़ सकता हूँ, उस सबको कंबाइन हम्म। करके जितना भी मैं कर सकता था 13-14 डेज में मैंने अपना किया। और जब मैं गया वहां तो वो रिजल्ट मुझे दिखा भी जो मैंने फॉलो किया था। ग्रेट। ऑब्वियसली। एंड अभी हम इंटरव्यू रन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो बहुत कुछ टिप्स आपका जर्नी के बारे में बता ही दिया है। या तो इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ऐसा कुछ अनयूजुअल था, कुछ डिफरेंट था? मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस में? मुझे लगभग 80% ऑफ द इंटरव्यू याद है, मैं सारे क्वेश्चंस बोल सकता हूँ। मेरा मेरा इंटरव्यू पुणे में था, सिंस आई वाज वर्किंग इन मुंबई देन। सो हाँ। जैसे ही हम लोग पुणे में गए, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल पुणे, हम्म। तो वहाँ हम हम्म। लोग गए। मैं एंटर किया, मेरा एंटर करने के बाद आई सॉ सम वीडियोज वेयर पीपल हैव इंस्ट्रक्टेड मी ऑन यूट्यूब, जस्ट एंटर एंड गुड विश गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई डिड दैट स्टार्टिंग हाँ। विथ फीमेल मेंबर सिटिंग। हम्म। सो वो किया मैं, दे टोल्ड मी टू सिट, आई सेट। सो पहला हम्म। क्वेश्चन हिंदी में ही, सेंटर में जो बैठे हैं वो पूछते हैं मेरे से, पढ़ाई कहाँ से किया है तुमने? मैंने बोला सर मैं कोलकाता से पढ़ा हूँ। तो कोलकाता से पढ़े हो तो इधर क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर मैं इधर हम्म। मुंबई में जॉब करता हूँ, तो हाँ। इसीलिए यहाँ पर हूँ मैं। तो इसी से हम्म। क्वेश्चन पूछने लगे, किस कंपनी में काम करते हो, क्या काम हम्म। करते हो? तो मैंने बोला डाटा हम्म। इंजीनियर हूँ। तो इसी से क्वेश्चंस हम्म। पूछने लग गए हैं वो। जैसे कि एसक्यूएल से भी मुझसे पूछा गया है, ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर, इस दोनों में डिफरेंस क्या हम्म। होता है, एग्जाम्पल दे करके बताओ। ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया। और लकली हम्म। एक रात पहले ही मैंने चैट जीपीटी से इसे बहुत अच्छे से करके मैं गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो विद ग्रेट एग्जांपल एंड which will make me to help them understand what these are, हम्म। I studied। और सेकंड क्वेश्चन हम्म। फिर उसी से पूछा गया। बगल वाले सर ने पूछा कि since you have studied from electronics and communication, हम्म। if somebody who is in space, if they want to talk on earth, explain the process how it will be completed।
कम्युनिकेशन, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस हाँ, रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, और सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये भी पूछा गया है मुझसे। हम्म, फिर उसके बाद एक जो मैम बैठी थी, उनने मुझसे पूछा हम्म, कि बैंक में अगर हम लोगों को डाटा को सिक्योर करना हो और जितने भी हम लोग को थ्रेट्स आते हैं, तो हम लोग के पास क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या नए-नए सॉल्यूशंस इसमें लाए जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं पूछे 3-4 गए थे। मेंबर्स के द्वारा। और जो सेंटर में बैठे थे वो मोस्टली मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और मैं क्या किया, मैंने हाँ, कॉलेज में क्या किया, मेरे गैप ईयर्स हैं, बेसिकली आपका बैकग्राउंड पूछ रहे थे वो। बैकग्राउंड चेक क्या है। स्टार्टिंग होता है हाँ, बैकग्राउंड के साथ से ही। क्वेश्चंस बैकग्राउंड। जो आते हैं वो लेफ्ट और राइट साइड से आ रहे हैं। सेंटर वाले जी। स्टार्ट करते हैं और वो सेंटर वाले ने पूरा पूछना स्टार्ट किया मेरे से, कहाँ से पढ़े हो, कॉलेज कितने टाइम में कंप्लीट, किस ईयर में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद हम्म, कहाँ वर्किंग स्टार्ट हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हम्म, पूछे गए हैं। तो इसी से क्वेश्चंस राउंड ओके। अप होती गई और मिलती गई। ऐसे आपका इंटरव्यू भी अच्छे गया। हाँ। हाँ, तो अभी आप कनाडा बैंक में काम कर रहे हैं, आईटी ऑफिसर है वहां पे। आपका टिपिकल डे कैसा है? आप ऑफिस जाते हो, क्या होता है, कैसा होता है घर आने तक आपका पूरा डे? अगर एक छोटा सा ऐसे ब्रीफ बोल सकते हैं तो कैसा होता है दिन? It is normal. Means if I say IT officer is a bit relaxed type of job as compared to what people are working on the branches. Since हम्म, कुछ लोग जो हमारे ऑफिस में हैं, जो सीनियर्स है, वो ब्रांच से ही आए हैं। ब्रांच के भी लोग ओके। यहाँ पर 3 सालों के लिए आ सकते हैं। वो बोलते हैं हम्म, कि ब्रांच में फोन आ जाता है ऊपर से हम्म, कि 10 हम्म, APY मतलब अटल पेंशन योजना कंप्लीट करना है, इतने हम्म, इतने इंश्योरेंस करवा देने हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं। हम्म, हमारे फ्लोर हम्म, पे हम कैनेडा बैंक के सारे ऑफिसर्स तो बैठते ही हैं ऑन हम्म, द स्केल 1, और स्केल 3, हम्म, 4 भी बैठते हैं। और हमारे ही हम्म, साइड में हमारे वेंडर्स भी बैठते हैं। वेंडर्स हम्म, डेलोइट से आए हुए हैं, ओरेकल से हैं, ये सारे लोग बैठते हैं जो कि हम्म, हमारे डेवलपमेंट हम्म, प्रोडक्शंस को देखते हैं। और हम लोगों के हम्म, पास एक्सेस होता है किसी भी चीज़ को, अगर वो डेवलप करना चाह रहे हैं कैनेरा बैंक के हम्म, इनसाइड में जा करके, किसी भी प्रोडक्शन को वो टच करना चाह रहे हैं, किसी डाटाबेस को टच करना चाह रहे हैं, तो वो आके हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं इस ओके। प्रोडक्शन को करना चाहता हूँ, इस डाटाबेस में मुझे हम्म, एंट्री चाहिए। तो उनका डीएमएस हम्म, आईडी जितने भी होते हैं वो हम लोग डाल करके हम्म, उनको एक्सेस देते हैं, और वो करते हैं हम्म, उधर, और फिर हम लोगों से सब कुछ दिखाते हैं कि सर इट इज़ वर्किंग हम्म, दिस, इट इज़ लैगिंग लाइक दैट दिस। तो हम लोग को काम होता है बेसिकली टू कीप एन आई on the bank हम्म, servers, whether it is working properly, productions is going on properly, this or not. यहाँ तो हम लोग एक 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 घंटे तक बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉरिडोर में जा करके। वी आर गेटिंग दैट मच टाइम ऑन टॉप ऑफ लंच टाइम। नाइस। तो जो भी अभी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आई थिंक दे विल बी एक्साइटेड। उनको भी एक ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा अगर मिल गया तो ऐसा एनवायरनमेंट होगा ऑफिस के लिए। दिस विल समहाउ मोटिवेट देम बिकॉज दे कैन विजुअलाइज समथिंग कि अच्छा ऐसा होने वाला है मेरा एग्जाम, मतलब ऐसा होने वाला है मेरा जॉब रोल, like that. So Abhi, we have almost come to the end of the interview. Just one golden tip from you for all the aspirants who are going to appear for the next exam for this post. Hmm. So one golden tip will be clear the concept from where you want. You just clear your concept. But anyhow, you have to give abundant number of mock tests. There is no Hmm. need that you are going to examination saying, God, I will clear this. Please help me. No, you are seeing हाँ. your result itself in the home. Just Hmm. go and appear for that Hmm. test. यहाँ तक जो Hmm. मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं वही वही आने वाले हैं। ऐसा ना पेपर, Hmm. नहीं तो वो एनवायरनमेंट जो होता है पेपर का वो अलग होगा, Hmm. नहीं तो एग्जाम में कुछ अलग रहता है। जो परसेंटाइल यहाँ आ रहे हैं Hmm. वही आने वाले हैं वो भी। Hmm. सो मॉक टेस्ट इज Hmm. द की, जस्ट कीप ऑन गिविंग दिस एज मच एज यू कैन गिव, Hmm. revise the concepts from the mock test only, and you will Hmm. be the next skill 1 officer in any bank. I think that's a really good line. I mean, जो भी देख रहे हैं कि that next officer tag वो एक अच्छा punch line है, तो I think this is really insightful and helpful. So we have come to the end of this session. Thank you, Sami, for joining us, and it was an insightful and a wonderful session. For those who are watching the video, we hope it was helpful for you as well.